کھولنا پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ پچھلے تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر آیا نمبر 185 سورہ بقرہ. انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں آیا نمبر 186 آف سورہ بقرہ. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے کانٹیکسٹ کیا تھا؟ رمضان کے بارے میں کر رہے تھے نا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ دا لاسٹ آیت جو تھی 185 183 184 185 وغیرہ یہ سب آیتیں کس چیز کی تھیں؟ رمضان کے متعلق تھیں. ایک دم سے اب دیکھیں 186 میں کیا آتا ہے. 186 میں آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بہت پروفاؤنڈ آیت ہے. اب جب تفسیر دیکھیں گے تھوڑی سی تفسیر تو پتہ چلے گا. ابھی تو ورڈ فارورڈ کرتے ہیں. وَإِذَا اینڈ وین، یعنی اس میں ظرف ہے، یہ کنڈیشنل ناؤن ہے. وَإِذَا اینڈ وین اور جب. سَأَلَكَ سَأَلَكَ کیا چیز ہے؟ سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالًا. سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالًا پہلے بھی کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی سوال کرنا. ٹھیک ہے، سین حمزہ لام ان کے روٹ لیٹرز ہیں. سوال کرنا یا ٹو آسک. اب آتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ اینڈ وین آسک یو. سألہ کا یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. آسک یو یا سوال کریں یا آپ سے پوچھیں. اینڈ وین دے آسک یو، اینڈ وین آسک یو، ابھی آگے نہیں لکھا ہے دے، صرف لکھا ہے کیونکہ دے کا ہے بھی نہیں. اینڈ وین آسک یو، اور جب سوال کریں یا جب پوچھیں. اچھا دیکھیں سألہ بھی پاسٹ ٹینس ہے لیکن میننگ اس کی کیا مضارع ہے، کیونکہ جب آ گیا نا سر. جب جو کنڈیشن آ جاتی ہے نا اس کے ساتھ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا اذا کی وجہ سے اس کو ہم سألہ کا آسک یو کہیں گے. آسک یو نہیں کہیں گے، آسک یو کہیں گے. جب پوچھتے ہیں پوچھا تھا نہیں کہیں گے. عبادی، عباد آپ سب کو معلوم ہے، عین با دال، اس کا مطلب کیا؟ عباد، میرا غلام، میرا بندہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، میرے سلیوز. تو جب میرے سلیوز عبد اور عباد اور عبادی یا آ گیا نا بیچ میں تو اس کا مطلب میرے. جب میرے غلام، میرے بندے، مائی سلیوز جب آپ سے پوچھتے ہیں انی، انی، ان اور پلس نی دو ورڈز ہیں. ان کا مطلب ہے اباؤٹ یعنی بارے میں، اور نی کا مطلب ہے میرے. یہ ای ہے لیکن نی بن گیا انی یعنی میرے بارے میں. اباؤٹ می یعنی جب میرے بندے، جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں. فَإِنِّي قریب، ف کا مطلب ہے دین یعنی آپ ان کو بتا دیجئے. ف یعنی دین. انڈیڈ، فَإِنِّي انڈیڈ آئی ایم قریب، آئی ایم کلوز یا آئی ایم نیئر. تو بے شک میں قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں مطلب. اور پھر آگے کا جو سنا نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. اجیبو کس سے ہوتا ہے؟ اجابہ، جا جیم با، جیم با با یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا جواب، یہ اس طرح کا ہے سمجھے. اجابہ یجیبو اجابتن، اجابہ یجیبو اجابتن اس کا کیا مطلب ہے؟ اجیبو یعنی آئی ریسپونڈ ٹو. اور اس میں اگر آپ عربی میں اب دیکھیں تو صرف جواب نہیں، آئی ایکسیپٹ. تو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. کس چیز کو قبول کرتا ہوں؟ دعوت الداعی. دعویٰ کا کیا مطلب؟ کال. کس کی کال؟ داعی یعنی جو کال کرنے والا ہے. دعا یدعو دعوتن یعنی ٹو کال، ٹو انووک، دعا کرنا، پکارنا. ہماری دعا جو ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعویٰ کا مطلب دعویٰ دینا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے، وہ بھی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دعوت الداعی یعنی دا کال آف دا کالر. داعی کا کیا مطلب ہے؟ جو پکارنے والا، جو دعا کرنے والا. جو آپ کہتے ہیں ہم لوگ داعی بھی کہتے ہیں نا، جو کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن اسلام کے لیے، اس کو بھی کہتے ہیں نا داعی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. آئی ریسپونڈ، آئی ایکسیپٹ دعوت الداعی، دا کال آف دا کالر. دعا کرنے والے یا پکارنے والے کی کال، اس کو میں جواب دیتا ہوں. اذا دعان،
इज़ा यानी when, यानी जब, अगेन ये फिर एक शर्त आ गया, जब हम पुकारते हैं, जब अल्लाह के बंदे पुकारते हैं, when he calls me, जब वो पुकारता है मुझे, ये दआनी था ना, दआनी से दआन हो गया क्योंकि आखिर में जो नून था वो ड्रॉप हो गया, या मुतकल्लिम है दआनी, उसका नून ड्रॉप हो गया, मखजूफ हो गया, ठीक है। तो दआ अगेन पास्ट टेंस है, इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता था, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, मुदारे है, और मुदारे क्यों होगा, क्योंकि अगेन शर्त आता है, इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारते हैं। कितने मजे की बात है। आप देखें कुरान करीम में, अब अगर हम देखेंगे हम कहेंगे ये तो पास्ट टेंस था, सारा कुछ पास्ट टेंस था, लेकिन जब आप इसको देखेंगे और आपको इज़ा का मतलब समझ आ जाता है कि यहाँ पर इज़ा का मतलब शर्त है, जब हम पुकारेंगे अल्लाह के बंदे, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ, मैं उनकी दुआ सुनता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। फल यस्तजीबू ली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी आयत में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक वो था कि मैं जवाब देता हूं जब वो पुकारे। अब इसके साथ कंडीशन आ गई, फल आ गया ना, ये लाम आ गया, इस लाम को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव लाम, यानी लामुल अमर। पहले आपने इंपेरेटिव पढ़ा जब किसी को कमांड दिया जाता है, याद है उस वक्त भी मैंने कहा था कि एक थर्ड पर्सन के लिए भी इंपेरेटिव है, यानी डायरेक्टली आप किसी को नहीं कह रहे हैं कि ये करो, लेकिन फल आ गया, लाम आ गया, लामुल अमर आ गया। इस लामुल अमर का मतलब है कि उनको चाहिए, उन पे लाजिम है, उनको चाहिए, फल यस्तजीबू ली, ये इस्तजाबा, ये वही जीम बा है, लेकिन इसका फॉर्म 10 है, ये जैसे हम कहते हैं ना इस्तिग़फ़ार, इस्तजाबा यस्तजीबू इस्तिजाबतुन, इस्तजाबा यस्तजीबु इस्तिजाबतुन, यानी टू एक्सेप्ट, टू ओबे, वही चीजें कबूल करना, या आप कहें हुक्म मानना, इस वक्त अल्लाह के लिए यूज हो रहा है तो हम कहेंगे टू ओबे, हुक्म मानना, या कबूल करना भी है, लेकिन अल्लाह से हम इस वक्त कहेंगे टू ओबे, टू हुक्म मानना। सो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फल यस्तजीबू ली, सो दे शुड ओबे मी, मतलब दे मस्ट ओबे मी, ये लाजिम है, ये फेलुल अमर है। बस इसको उर्दू में इस नॉर्मली इस तरह लिखते हैं, बस चाहिए के, जब लाम डालते हैं बस चाहिए के वो हुक्म माने मेरा, यानी बस इनको चाहिए जो मुझसे दुआ मांग रहे हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, उसके लिए अल्लाह कह रहे हैं बस उनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने। और सेकंड कंडीशन है वल युमिनु बी, अगेन ये इंपेरेटिव पार्टिकल है, इसमें भी लाम आ गया, लामुल अमर आ गया, और हमजा मीम नून है, वल युमिनु बी, आमना युमिनु ईमानन, ये आपने कई दफा पढ़ा है, फॉर्म 4 है, तो इसके साथ सेकंड कंडीशन है एंड दे शुड बिलीव इन मी, और दे शुड हैव ट्रस्ट इन मी, और चाहिए कि वो ईमान लाएं मुझ पर, या चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं। फिर आगे इसका जब ये सब हो जाएगा तो इससे क्या होगा, लअल्लहुम यरशुदून, लअल्लहुम यरशुदून, यरशुदून का है रा शीन दाल रुश्द, जिसको हम कहते हैं ना खुलफाए राशिदीन जैसे कहते हैं, सो दे में लअल्लहुम, सो दैट दे में बी यरशुदून, राइटली गाइडेड, ताकि वो सही हिदायत पाएं, ताकि वो सीधे रास्ते पर चलें, उनको सीधे रास्ते पर चलाया जाए। रशदा यरशुदू रशदन, जस्ट इन केस, रशदा यरशुदू रशदन। इस आया नंबर 186 की तफसीर थोड़ी सी देखते हैं, मैंने साथ साथ ऑलमोस्ट तफसीर कर ही दी है, लेकिन फिर भी देखें हम क्या कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपसे पूछा बिफोर व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास कि लास्ट आयत हम किन चीज के बारे में पढ़े थे, फास्टिंग, वहां फास्टिंग पढ़ रहे थे, और 185 तक फास्टिंग था, और उसके बाद अचानक देखें कि अब क्या आ रहा है कि ये मैंने आपको बताया ना कि बहुत एक डीप आयत है, बहुत प्रोफाउंड आयत है, इसमें हमारी ह्यूमन नेचर के बारे में अल्लाह ताला सब कुछ जानते हुए, वही खालिक हैं, तो उनको हमें कंफर्ट दे रहे हैं, हमें वो एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं। हमारी इंसानी फितरत ये कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने रोजा रखा, हमने नमाजें पढ़ी, हमने इतनी दुआएं की, या कबूल होंगी कि नहीं होंगी, दिल में ये आता है। तो अल्लाह ताला इतने कंपैशनेट है, रऊफुर रहीम है कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं हमको, सिर्फ ये नहीं कहते मैं कबूल करूंगा, कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स देखें अल्लाह की, कि मैं करीब हूं, बेशक मैं करीब हूं, अपने बंदों के करीब हूं, अपने स्लेव्स के करीब हूं, आई एम इंडीड क्लोज। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे इतने करीब हैं, कितनी इंटीमेसी है अल्लाह के साथ हमारी, कितनी एक्सेसिबल। सईदा आपका माइक बंद कर दीजिए प्लीज।
सईदा आपकी माइक बंद कर दीजिए। तो कितनी इंटीमेसी अल्लाह के साथ, अल्लाह को हमारे साथ आप देखें, और अल्लाह ताला हमारे लिए कितने एक्सेसिबल हैं, खुद डायरेक्टली एक्सेसिबल है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारे और अल्लाह के दरमियान। और फिर अल्लाह ताला की ये जो क्लोजनेस है सिर्फ करीब नहीं है, अल्लाह ताला साथ ये भी क्लियर करते हैं कि मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता हूँ। और इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं कि अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते हैं, अल्लाह ताला को हम सुन नहीं सकते हैं, अल्लाह ताला को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के प्रूफ्स हैं, लेकिन हमने कितनी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह हमसे दूर नहीं है, सात आसमान पे अल्लाह ताला कहाँ सुनेंगे? नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आपके करीब हूँ, मैं सब कुछ सुनता हूँ, मैं सबको जवाब देता हूँ। तो इससे एक तरह से अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि मैं आपके करीब हूँ, वो हमें अश्योरेंस दे रहे हैं कि हमसे इतने करीब हैं कि हम उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं जब भी हम चाहें। इतना कि वो जैसे ही अल्लाह ताला हमारी बात सुनते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनको जवाब दूंगा, और हमें हमारे दिल की गहराइयों को सुकून मिल जाता है। लेकिन एक और इसके साथ एक क्वेश्चन भी है, एक वार्निंग है कि अल्लाह ताला इतने नजदीक है हमसे, हमें डरना चाहिए कि बिकॉज अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे आउटर एक्शंस बट हमारे जो हमारे इंटेंशंस है, इंटरनली जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोचें भी अल्लाह को मालूम है। फिर एक और चीज हम सीखते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी दुआओं को रिस्पॉन्ड करूं, मैं आपकी दुआएं कबूल करूं, तो आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, दो शराइत हैं। नंबर 1, वी मस्ट ओबे हिम, ठीक है ना, और नंबर 2, वी मस्ट बिलीव इन हिम। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अल्लाह की नाफरमानी ना करें, अल्लाह का फरमान पूरा करें, अल्लाह के अहकाम को माने, फरमाबरदारी करें, और अल्लाह पे ईमान लाएं। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, और इस आयत से बहुत क्लियर हो जाती है कि दो चीजें हैं, अगर हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं और अगर हम अल्लाह पे पूरा ईमान रखते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें क्या मिल जाएगी? ट्रू गाइडेंस, रुश्द। हम अल्लाह ताला कहते हैं फिर आप यरशुदून हो जाएंगे, आपको ट्रू गाइडेंस मिलेगी, सही हिदायत मिलेगी, और आप राइचस हो जाएंगे। आगे तत्तकून का सब आ रहा था, अब ये क्या हो गया? वही रुश्द है, तो वही है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आप तकवा इख्तियार कर। यहाँ तकवा का लफ्ज नहीं है, लेकिन मतलब क्या हुई कि आप अल्लाह से कॉन्शियस हो जाएंगे, अल्लाह हमारे इतने करीब है। एक और जगह भी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इतना करीब हूँ कि अल्लाह के, कि मैं आपके दिल से जो बात निकलती है मुंह पे भी नहीं आती, कि मुझे वो मेरे थ्रू होके गुजरती है। सो दीज आर द टू थिंग्स, ईमान इन अल्लाह एंड ओबीडियंस, एंड देयर इज नो थर्ड वे। ये आप याद रखें, नो थर्ड वे। लेकिन हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं किस तरह वो अपने आप को थका रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, किसको? फॉल्स और पावरलेस बींग्स को, जिसको फुलिशली, स्टूपिडली वो समझते हैं कि ये हमारे खुदा है, ना खुदा है, ये हमारे वो है क्या, इंटरमीडियरीज हैं, इनके थ्रू हम सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के पास, हम किसी के थ्रू जाएंगे तो हमारी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वो लोग ना आपकी दुआ सुन सकते हैं, ना आपका कॉल सुन सकते हैं, ना आपकी नमाजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन लोग ये नहीं समझते, लोग ये नहीं समझते कि तमाम पावर, तमाम अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास है, और हम डायरेक्टली अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं, और अल्लाह हमारी दुआओं को सुनने वाला है और सुनेगा, कहते हैं मैं सुनूंगा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी, वो इससे रिलेटेड है, वो मुझे हमेशा फैंसी करती है, हमेशा इंट्रीग करती है मुझे, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं ये सुनती हूँ। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ये कह सकते थे, जब आप मुझे पुकारें, ठीक है ना, इजा द इजा इजा दावत इजा दा जो भी दान जो है, जो जब मुझे पुकारे तो फिर मैं उसको जवाब दूंगा। आपने नोटिस किया कि अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जब आप पुकारेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी है। नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, समझ में आई मेरी बात? कि अगर मैं दुआ मांगती हूं तो अल्लाह ताला जवाब देंगे, अगर आप दुआ मांगती हैं तो अल्लाह ताला जवाब देंगे। यहाँ रिस्पॉन्स क्या हो गया? अल्लाह ताला पहले कह रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं, बिफोर इवन वी मेक द दुआ, कि मैं आपकी दुआ सुनूंगा जब आप मुझे पुकारोगे। अल्लाह ताला को पता है कि हम दुआ क्या करेंगे, अल्लाह ताला को ये भी मालूम है कि हमारी दुआ क्या, अल्लाह ताला पहले से रिस्पॉन्स तैयार है अल्लाह के पास, हम ही सुस्त है। सुभान अल्लाह।
चलें, तो ये बीच में एक आयत आ गई जो रमजान की आयतों के बीच में थी, अभी दोबारा जो 187 है ये अब वही रमजान से कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हमें अश्योरेंस दे दी, आप रोजा रख रहे हो, आप डर रहे हो, आप फिक्र में हो, आपको तरावी पढ़नी है, आपको रातों को जागना है, आपको लैलतुल कदर ढूंढना है, आप दुआ कर रहे हैं, आपको पता नहीं यकीन है कि नहीं है कि दुआ कबूल, अल्लाह ताला ने बीच में ये डाल दिया। मेरे बंदों से कहें, मेरे स्लेव से कहें, मेरे गुलामों से कहें कि आपने अभी दुआ मांगी भी नहीं कि मैं आपका दुआ पहले से अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं कबूल करूंगा। आया नंबर 187 लंबी आयत है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं आसानी से पूरी कर लें। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून। आ गया ना, यत्तकून, लोगों के लिए अल्लाह ताला क्लियर बताते हैं अपनी आयात ताकि हम तकवा इख्तियार करें। एंड रिजल्ट हर चीज का तकवा है, ठीक है ना। उहिल्ला, उहिल्ला किससे आया? अहल्ला, हा लाम लाम, जिसको हम कहते हैं ना हलाल। अहल्ला युहिल्लु इहलालुन, अहल्ला युहिल्लु इहलालुन कौन सा है? फॉर्म 4। अल्लाह ताला कहते हैं कि हलाल कर दिया गया आपके लिए, उहिल्ला हलाल कर दिया गया। कौन सा ये फेल है? फेल मादी मजहूल, पैसिव वॉइस है, फेल मादी मजहूल, हलाल कर दिया। अल्लाह नहीं कह रहे कि मैंने हलाल किया, अल्लाह कह रहे हलाल कर दिया गया, लेकिन किसने हलाल किया? अल्लाह ने हलाल किया। हलाल कर दिया गया है आप पर, हैज बीन मेड परमिसिबल फॉर यू और हैज बीन मेड लॉफुल फॉर यू, आपके लिए ये परमिसिबल हो गया, आपको हलाल हो गया आप पे। लैलतस सियाम, लैला यानी रात, आपको पता है, सियाम आप पढ़ चुके हैं, रोजा यानी द नाइट्स ऑफ फास्टिंग, मुदाफ मुदाफ इलैहि है, द नाइट्स ऑफ फास्टिंग, रोजों की रातें, रमजान की रातें। और रफसा, रफसा क्या है? रफसा, पता नहीं पहले नहीं पढ़ा शायद, रफसा यरफुसु रफसन, रफसा यरफुसु रफसन, यानी किसी के करीब जाना भी होता है, टू अप्रोच, और इसका मतलब ये भी होता है किसी के साथ इंटीमेसी करना, यानी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना, किसी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना, यानी किसी के साथ करीब जाके मुबाशरत करना, जो भी, वो सब इसमें आ जाता है। इला निसाइकुम, इला यानी टू या टूवर्ड्स, आप अप्रोच करें अपनी बीवियों के पास, निसाइकुम आपकी बीवियों के पास, अपनी बीवियों के पास, टू योर वाइव्स, अपनी, यानी कि आपके लिए इजाजत है, आपके लिए लॉफुल कर दिया गया है, आपको ये के लिए हलाल कर दिया गया कि अपनी बीवियों के पास आप जाएं, किस वक्त, यानी आप पहुंचे इला निसाइकुम, अपनी बीवियों के पास। अब इसका लैलतुस सियाम की बात हो रही है, यानी रमजान की रातों की, रमजान के दौरान नहीं, रोजे के दौरान नहीं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं एक बहुत खूबसूरत आयत जो हर शादी में भी रिपीट होती है, हुन्ना लिबासुल लकुम, हुन्ना क्या चीज है? दे, किसके लिए? फीमेल प्लूरल के लिए, हुन्ना वो यानी आपकी जो बीवियां हैं, लिबासुल लकुम वो लिबास हैं आपके लिए। दे आर यानी द फीमेल प्लूरल, दे आर गारमेंट्स, दे आर क्या कह लें? कवरिंग कह लें, क्लोथिंग कह लें, क्लोथ्स कह लें, for you, they are garments, they are covering, they are clothing, they are clothes, वो आपके लिए लिबास है। उर्दू में तो हम समझते हैं ना लिबास, इसलिए कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, व अंतुम एंड यू आर, ये मर्दों से कहा जा रहा है, एंड अंतुम और आप लिबास हैं उनके लिए, एंड यू आर गारमेंट्स या कवरिंग या क्लोथिंग फॉर देम। और फिर अल्लाह ताला एक चीज को हमारे सामने फाश कर रहे हैं, कोई रास्ता, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अलिम अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाह न्यू है, अलिमा का मतलब है न्यू, लेकिन इसका मतलब पास्ट टेंस है, लेकिन अगेन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमेशा जानते ही हैं, अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला इल्म रखते हैं, इल्म रखते हैं अल्लाह, अलिमा इल्म रखते हैं, जानते हैं अल्लाह, अल्लाह नोज, अल्लाह इल्म रखते हैं, अल्लाह जानते हैं, अन्नकुम दैट यू कुंतुम, कि आप, दैट यू यूज टू, कुंतुम काना से आता है, कुंतुम काफ वाव नून, कि कुंतुम दैट यू यूज टू, कि आप लोग थे, यानी क्या करते थे? तख्तानूना, तख्तानूना किससे आया? जैसे हम
خا واو نون, उसका मतलब ये जैसे खयानत करना, ठीक है ना, टू डिसीव, खयानत करना. तो इख्ताना यख्तानु इख्तियानुन, इख्ताना यख्तानु इख्तियानुन, कौन सा फॉर्म है ये? फॉर्म 8, यानी टू चीट, टू डिसीव, खयानत करना. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला जानते हैं कि आप लोग खयानत करते थे. तख्तानूना अनफुसकुम, अपने आप को, अपने आप से, अपनी नफ्स से या अपनी जान से या अपने आप को, योरसेल्व्स आप कह सकते हैं. नून फासीन आप कई दफा पढ़ चुके हैं. अनफुसकुम, आप अपनी जानों से खयानत करते थे, यानी आप खुद खयानत कर रहे थे. फताबा अलैकुम, फताबा अब सबको मालूम है, और फताबा अला भी आपको मालूम है. अगर फताबा इला होता यानी तौबा करने वाला, ताबा उसने तौबा की, इला यानी अल्लाह की तरफ, और ताबा अला है यानी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की. सो आप इसको कई दफा पढ़ चुके, लिखें. सो ही टर्न्ड टूवर्ड्स यू, फताबा अलैकुम, या ही एक्सेप्टेड योर रिपेंटेंस, बस वो आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ, या वो मेहरबान हुआ, या उसने आपकी तौबा कबूल फरमा ली. व अफा अनकुम, अफा ऐन फा वाओ, उसका मतलब ये कि और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया. अफा के वर्ड्स वही हैं, रूट लेटर्स माफ करने का. एंड ही फॉरगिव यू, और उसने आपको माफ फरमाया. अब अल्लाह ताला कह रहे हैं फल आना, सो नाउ, यानी अब से आप क्या करें? बस अब बाशिरुहुन्ना, बा शीन रा यानी बाशिरुहुन्ना, यानी आप उनसे आप मुबाशरत कर सकते हैं, आप करें उनसे मुबाशरत, आप इंटीमेसी करें. बाशरा युबाशिरु मुबाशरतन, बाशरा युबाशिरु मुबाशरतन, जैसे फ़ाअला युफ़ाइलु, ठीक है ना. फॉर्म कौन सा हो? फॉर्म 3. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बाशिरुहुन्ना, ये फ़िअल अमर है कि आप करें, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त करें. अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब आप कर सकते हैं. बाशिरुहुन्ना, हुन्ना क्या? अगेन फेमिनिन प्लूरल, अपनी वाइफ्स के साथ और किसी के साथ नहीं. वब्तगू, एंड सीक, और आप तलब करें, आप तलाश करें. इब्तगा यब्तगी इब्तिगाउन, इब्तगा यब्तगी इब्तिगाउन, बा बा गैन या, ठीक है ना. आप तलाश करें, आप तलब करें. फॉर्म 8 है अगेन ये इब्तगा, ठीक है ना, फॉर्म 8 है. मा कतबा, what has ordained, जो लिख दिया है. कतबा यक्तुबु किताबन, अभी आपने पढ़ा था ये रोजे के सिलसिले में बहुत सारा. अल्लाहु मा कतब अल्लाहु, जो अल्लाह ने लिख दिया, जो अल्लाह ने ऑर्डेन कर दिया, जो अल्लाह ने डिक्री कर दिया, लकुम आपके लिए. what has ordained Allah for you, जो अल्लाह ने, जो लिख दिया है अल्लाह ने आपके लिए. यानी अब आपको इजाजत है कि रात को अपनी बीवियों के पास आप जाए. अब क्या आगे क्या है? रोजे का पूरा हुक्म है. वकुलू, एंड यू ईट. अकला यकुलु अकलन, फेलुल अमर है. एंड यू ईट, और आप खाएं, प्लूरल में, और आप खाएं. वशरबू, और आप पिएं, यानी एंड यू ड्रिंक. शरिबा यशरबु शुरबन, शरिबा यशरबु शुरबन, फेलुल अमर है दोनों में. इसका मतलब नहीं सारा वक्त खाते रहे, सारा वक्त पीते रहे, वही जैसे उसका था. हत्ता युबय्यिना लकुम, हत्ता अंटिल, यहाँ तक के, युबय्यिना कई दफा पढ़ चुके हैं, बिकम्स क्लियर, बिकम्स डिस्टिंक्ट, यानी जाहिर हो जाए, लकुम आपके लिए जाहिर हो जाए. अगेन रिपीट करती हूँ. तबय्यना यतबय्यनु तबय्युनन, तबय्यना यतबय्यनु तबय्युनन, फॉर्म 5, टू मेक क्लियर, यानी जाहिर होना, वाजे हो जाना. तो जब तक के वाजे ना हो जाए आप खा पी सकते हैं. जब तक क्या ना वाजे हो जाए? अल खैतुल अब्यदु मिन अल खैतिल अस्वद, अल खैतुल अब्यद, खैत किसको कहते हैं? धागे को कहते हैं. लेकिन आप लोगों ने सहाबा की स्टोरी भी सुनी होगी, अभी मैं वर्ड फॉर वर्ड पे फोकस कर रही हूँ. चले, अल खैत, यानी खैत का मतलब ये है खा या तो, इसीलिए दर्जी को कहते हैं खयात, ठीक है ना. अल खैतुल अब्यदु, यानी धागा सफेद. अब्यद सफेद को कहते हैं, सफेद धागा या सफेद धारी कह लें. सफेद धारी अच्छा लफ्ज सफेद धारी है यहाँ पर. मिनल खैतिल अस्वदी, फ्रॉम, मिन का मतलब है फ्रॉम, खैतिल अस्वदी फ्रॉम द ब्लैक थ्रेड, फ्रॉम द थ्रेड ब्लैक, यानी स्याह धागे से या स्याह धारी से. मिन आ गया तो मिन के वजह से क्या हो गया? खैतिल अस्वदी. वो खैतुल था अब्यदु, और ये खैतिल अस्वदी आ गया, ठीक है ना. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तक मिनल फजर भी आ गया, ऑफ द डॉन, यानी फजर की जब तक वो धारी नजर नहीं आ जाए, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकें, जब तक आप खा पी सकते हैं. सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल,
सुम्मा देन अतिम्मु, कंप्लीट करें, अतम्मा युतिम्मु इत्मामुन पहले आप पढ़ चुके हैं फॉर्म 4, देन यू कंप्लीट अस्सियामा यानी रोजे को, द फास्ट, देन कंप्लीट द फास्ट, फिर आप पूरा करें रोजे को, इला लैल टिल द नाइट, मगरिब तक। अब नाइट लिखा हुआ है, नाइट यहाँ पर लैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन करके बताया कि नाइट क्या है, रात तक यानी मगरिब तक। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तुबाशिरुहुन्ना एंड डू नॉट हैव इंटिमेसी विद देम, आप उनसे मुबाशरत ना करें अपनी बीवियों के साथ। अगेन वही बाशरा युबाशिरु मुबाशरतन, तो फॉर्म 3 है, व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, व अंतुम, ये आज वह जो है ना एंड नहीं है, ये है वाइल इन अ स्टेट ऑफ, ये वाउल हालिया है, ठीक है, एक हाल है, एक स्टेट है, यानी जिस हाल, इस हाल में के, यानी उस सिचुएशन में, वाइल आप इंग्लिश में कहेंगे वाइल अंतुम आकिफूना, जबकि आप एतकाफ में हो, जब आप एतकाफ में, देखिए रातों की बात हो रही है ना, अब जब एतकाफ में आप मस्जिद में होंगे, आगे लिखे ना फिल मसाजिद, इन द मॉस्क या मसाजिद में, जब आप मस्जिद में हैं, एतकाफ की हालत में हैं, डिवोटेड हैं, वाइल यू आर डिवोटेड कह लें, वाइल यू आर सेक्लूडेड कह लें, और तो उसका क्या, उसके ये इस्मुल फाइल है क्योंकि एतकाफ से निकला है, और इसका आकिफूना का सिंगुलर क्या है, आकिफुन, आकिफुन, ठीक है ना, और मस्दर क्या है, उकूफुन, रुकूफुन। तो जब आप इस हाल में हो कि मस्जिद में एतकाफ कर रहे हो इन द मसाजिद, तो आप अपनी बीवियों के साथ आप घर भी, मैं आपको तफसीर में बता दूंगी, मुबाशरत ना करें। तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का यानी दोज होता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से दोज है, लेकिन हम इसको कहेंगे दीज, ये लिमिट्स हैं, दीज आर द लिमिट्स, हुदूदुल्लाह अल्लाह की लिमिट्स हैं, ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, दीज आर द लिमिट्स बाय अल्लाह या लिमिट्स ऑफ अल्लाह, या आप कहें दीज आर द लिमिट्स सेट बाय अल्लाह, फला तक़रबूहा, सो डू नॉट गो क्लोज टू देम, क़रबा यक़रबु क़ुरबन यानी करीब जाना, करीब से निकला है क़ाफ राबा, तो आप उनके करीब ना जाएं, ये नहीं कह रहे आप करें नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है उसके करीब भी नहीं जाएं, उसके नजदीक भी नहीं जाएं। और हाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हुदूद के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, हुदूद, इसीलिए हुदूद चूंकि प्लूरल है इसीलिए उसको फेमिनिन सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। हुदूद क्या है, गैर आकिल है, ठीक है, अगर जिसको लिखना है वो लिख लें। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, कज़ालिका इसी तरह, यानी युबय्यिनुल्लाहु खोल खोल कर बयान करते हैं अल्लाह, and that is how makes clear Allah, बय्यना युबय्यिनु तबयीनुन, कौन सा है, फॉर्म 2, बय्यना युबय्यिनु तबयीनुन फॉर्म 2, अल्लाह ताला इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं आयाती ही, अपनी आयात को, अपनी आयात को, हिज वर्सेस या उसकी आयात को, लिन्नास लोगों के लिए अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर, कितनी क्लियर ये एक आयत है, एक आयत में सब कुछ आ गया, लअल्लहुम यत्तकून, सो दैट दे मे अटेन तक़वा, अगेन एंड में क्या चीज आ गया, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें, इत्तका यत्तकी इत्तिकाउन कई दफा पढ़ चुके, फॉर्म 8। आते हैं अब इसकी तफसीर पे कि जब सबसे पहले, आप कहेंगे ये सब क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि जब सबसे पहले फास्टिंग या रोजे जब इंस्टीट्यूट हुए थे तो लोग क्या करते थे, जो सहाबा थे, सहाबा ही थे ना उस वक्त, सहाबा क्या करते थे कि वो अपनी बीवियों के साथ रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते थे, जब वो डरते थे, वो ये कहते थे कि पता नहीं दिन के वक्त तो हमने रोजा रखा है, दिन के वक्त तो पता है, लेकिन रात के वक्त का नहीं पता है, तो अब रात के वक्त क्या करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे। अगर वो रात को सो जा, और कब नहीं करेंगे, अगर सो जाते थे एक दफा, और फिर अगर वो सहरी से पहले भी उठ जाते थे, यानी अभी वक्त होता था फजर में, हालांकि रोजा तो फजर से लेके, फजर का टाइम स्टार्ट हो तब से लेके मगरिब तक है, लेकिन वो रोजे से पहले भी वो उठ जाते थे, अगर सो गए एक दफा और उठ गए तो फिर वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं इन्वॉल्व होते थे। हालांकि कोई ऐसी क्लियर इंडिकेशन, कोई ऐसे अहकाम नहीं थे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रोहिबिट कर रही थी या मना कर रही थी कि रात के वक्त आप अपनी बीवियों के पास ना जाएं, कोई भी ऐसी नहीं थी। वो नाइट्स ऑफ रमजान जो थी, लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये परमिसिबल नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस सिचुएशन को, इस हालत को ईज कर दी, उनके लिए आसानी कर दी। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर देते हैं कि इस आयत में ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने रहम किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस आयत के साथ रात को बीवियों के साथ मुबाशरत को हलाल कर दिया। लेकिन ये रूल बनाते वक्त अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि बस अब तुम जाओ और बीवियों के साथ जो करना है करो, मतलब फिर भी अल्लाह ताला ने क्या किया,
अल्लाह ताला ने इसको डिस्क्राइब किया है कि मैरिटल रिलेशनशिप क्या होती है, अज़दवाजी ताल्लुकात जो होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, मियाँ बीवी के ताल्लुकात किस तरह होने चाहिए। और इसको अल्लाह ताला ने बहुत कंपैशनेटली बताया, बहुत रहम से बताया, करम से बताया, और साथ साथ इसको बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब बहुत शफाफ कर दिया। और इस शफाफियत को देखने के लिए हमारी टॉपिक इस वक्त मैरिज नहीं है, हम इस वक्त ये नहीं बता रहे कि मियाँ बीवी को किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए, मवद्दा व रहमा और ये सब चीजें हम नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पर मवद्दा व रहमा का जिक्र नहीं आया। यहाँ किस चीज का जिक्र आया है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तो ये जो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, ये चूंकि इस आयत पे हम हैं और इस आयत की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, तो ये आयत दोबारा तो नहीं आएगी। तो इस आयत के लिए हम हस्बैंड वाइफ के रोल को थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं, चूंकि हम इस आयत पे वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला इस ब्यूटीफुल एग्जांपल से हमको क्या सिखा रहे हैं, कि आप उनके लिए लिबास हो और वो आपके लिए लिबास है। तो अरबिक वर्ड जो लिबास है हमें तो मालूम है उर्दू में कि उसको क्या कहते हैं, और इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया, गारमेंट, क्लोथ्स, कवरिंग। और इस तरह से हम इसको, यानी वो कपड़े जो हम पहनते हैं, लिबास हमारे ऊपर जो है, ठीक है ना। और हमें थोड़े से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि थोड़े ये लिबास हमारे लिए क्या करती है। ये मैंने शादियों पे दर्स में दे देती हूँ ये बात, लेकिन आज चूंकि हम इस आयत पे हैं तो मैं बताती हूँ कि हमारी लिबास की थोड़े से पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पर कि कौन सी क्या करती, लिबास का क्या काम है। नंबर 1, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो हमारा पर्दा करती, ये करती, वो करती, वो भी आएगा बीच में, लेकिन हम सिर्फ लिबास के बारे में ही देख रहे हैं कि सर नंबर 1 वो हमारी ब्यूटी को एनहांस करती है। आप इमेजिन करें हम अलग अलग कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, हमें वी फील बेटर, हमें अच्छा लगता है, वी लुक बेटर एंड वी फील बेटर। हम जब आईने में देखते हैं कि हमने ये कपड़े पहने हैं, ये मैच नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या, हमें ये हमारी ब्यूटी को एनहांस भी करती है और हम बेटर भी लगते हैं और हम फील भी बेटर करते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि वो हमको, हमारे लिबास हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, अगर गर्मी है तो हम लॉन के कपड़े पहनेंगे। तो जिस चीज से भी प्रोटेक्शन है, धूप से, रेन से, स्नो से, अगर स्नो है तो स्नो वाले जैकेट पहनेंगे। यानी कि लिबास है ना, वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ फिजिकली नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि लोगों की आंखों से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों के जजमेंट से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ओ ये इसकी कमर ऐसी है तो उसका फला ऐसा है, ये अच्छी है, ये बुरी है, या लोगों के एक्शन से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि हमारे जो लिबास है वो हमारे अंदर के कोई सीक्रेट्स हैं, कोई फॉल्ट्स हैं, उनको भी कवर करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर किसी के जिस्म पे दाग है, किसी के हाथ पे दाग है, किसी का कोई स्कार है, किसी के कोई उठी हुई जगह है, कोई बम्प है, कुछ भी है। तो हम जब वो पहन लेते हैं लिबास तो क्या होता है, हमारे अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो वो भी छुप जाती है, हमारे अंदर की कोई सीक्रेट है वो भी छुप जाती है। यानी इससे भी हमें तसल्ली, तो ओ मेरा ये छुप गया, नजर नहीं आ रहा है। चौथी चीज क्या है कि हमारा जो लिबास होता है, हम उसको, वो हमें फिट होता है, ठीक है ना, हमारे नाप से बना हुआ होता है, किसी और के नाप से नहीं बना हुआ होता है। खैर रेडीमेड भी होते हैं लेकिन हमारे नाप से, लेकिन अगर हमारा साइज मीडियम है, हम लार्ज नहीं खरीदेंगे। तो हमें क्या होता है, जब देखते हैं कि बड़ी अच्छी फिटिंग आई है, दर्जी से कपड़े लाके क्या होता है, देखते हैं फिटिंग अच्छी आई है कि नहीं आई है। जब अच्छी फिटिंग होती है तो हमें क्या लगता है, ओ हमारे कपड़े में बड़े अच्छे फिट कर रहे हैं, ये हमें सूट कर रहे हैं, वरना हम खुश भी नहीं होते पहन के। पांचवी चीज क्या है कि ये हमारे जो कपड़े हैं ये हमारे जाती, हमारे निजी हैं, दे आर पर्सनल। ये वो कपड़े हैं जो एक हमारा स्टाइल है, हम चूज करते हैं, मैंने लंबी पहननी है, छोटी पहननी है, टाइट पहननी है, ढीली पहननी है, ब्लू पहनना है, ग्रीन पहनना है, मेरा फेवरेट कलर के, इट्स सो पर्सनल। आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे, हो सकता है मुझे ना पसंद है, मैं आपको गिफ्ट दूं, आपको ना पसंद है, लेकिन ये एक इतनी पर्सनल चीज है, पर्सनल चॉइस पे हम कपड़े खरीदते हैं। तो हमारे कपड़े क्या करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलेंगे ये इसके कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो हमें, जब हम पब्लिक में भी जाएंगे वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो अबाया हो, इससे लिबास, ठीक है ना। नंबर 6 क्या है, हम अपने कपड़ों को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, पाक रखते हैं। आपने देखा है हमें नमाज पढ़ना है, कुछ भी करना है तो प्योर रखते हैं अपने कपड़ों को, और इस तरह हम जो बनाते हैं वो भी हम प्योर मटेरियल का भी होता है और हम उसको पाक भी रखते हैं। तो छठी चीज, 6 हो गया प्योर, कि वी ओनली वेयर प्योर क्लोथ्स, और हम अपने कपड़ों को पाक साफ रखते हैं, क्लीन भी रखते हैं। आपको हम गंदे मैले कपड़े पहन के तो नहीं जाएंगे ना, हमेशा धोते हैं, इस्त्री करते हैं, फिर पहनते हैं। नंबर 7 क्या है कि हमारे कपड़े हमारे सबसे करीब होते हैं, करीब तरीन आप कह लें, क्योंकि वो हमारे जिस्म को लगे हुए होते हैं। और क्या चीज है जो हमारे जिस्म के अंदर होंगे, जो हमारे जिस्म से टच करेंगे, कोई चीज टच नहीं करती सिवाय हमारी अंदर की जो लिबास है वो।
ठीक है, अगर हम अबाया पहनते हैं तो अंदर का लिबास टच कर रहा होता है। नंबर 8 क्या चीज है, हमारे क्लोथ्स जो होते हैं, हमारे कपड़े जो होते हैं, उसमें हम सिक्योर फील करते हैं, यानी पुरअमन फील करते हैं, या हम पीसफुल फील करते हैं, यानी पुरसुकून हम फील करते हैं, या आप कह लें हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यानी हमें पूरे एतमाद फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कवर्ड होती है। आप इमेजिन करें कि जब मैंने खुद देखा है, कभी औरतें जा रही थी कराची में, मैं ऐसे गाड़ी में बैठी हुई थी और औरतें स्कूल से बच्चों को पिक करने जा रही थी, उनके पतले पतले लॉन के कपड़े थे और नीचे से पतली पतली लॉन की शलवारें थी चिपकी हुई, और वो ऐसे उनके ना, ये हवा तो कराची में चलती रहती ना, वो हवा से उनकी कमीज, जो छोटी सी कमीज, लॉन की कमीज और इतनी लंबी चाक, वो पूरी उड़ के ऐसे हवा में चली जा रही थी, और ड्राइवर्स जो वहां पर बैठे हुए थे बच्चों को पिक करने के लिए, वो देख रहे थे और हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वो क्या क्या तमाशा देखते हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म अंदर से दिख रहा होता है। तो अगर हमने कपड़े ढंग के पहने में, लूज पहने में, ओपेक पहने में, तो हमें क्या होता है, वी फील पीसफुल, कि हमें कोई देख तो नहीं रहा ना, एक दिल को तसल्ली होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। और आप कॉन्वर्ट से अगर पूछें, वो कहते हैं हम इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हम हिजाब पहन लेते हैं, जब हम अबाया पहन लेते हैं, क्योंकि वो लोग पहले किस चीज के आदी थे, बिल्कुल आधा जिस्म उनका दिखता होता था। तो अब ये जो 8 पॉइंट्स मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में से निकाले हैं अपने, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि अगर ये अल्लाह ताला जो हमें बता रहे हैं, ये हमें अल्लाह ताला रमजान के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ही डीप बात बता रहे हैं कि अगर हम और हमारे शौहर, या हमारे शौहर और उनकी बीवियां, मतलब जो भी हैं हस्बैंड और वाइफ, उनकी बीवियां ने मतलब जो भी शौहर है उनकी बीवियां, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी, शौहर बीवी, अगर उनकी अगर इसी तरह की रिलेशनशिप हो जिस तरह के अपने कपड़ों के साथ हम करते हैं, तो इसेंशियली क्या होगा, दे विल बिकम पार्ट ऑफ वन अनदर। जिस तरह हमारे कपड़े हमारे पार्ट होते हैं, और फिर क्या होगा, दे, हर बंदा जो है, हर मियाँ बीवी में से दोनों विल बिकम द बेटर हाफ ऑफ, बिकॉज यू फील बेटर, विल बिकम द बेटर हाफ ऑफ द अदर। फिर मैंने आपको ब्यूटीफाई का बताया था, दे विल ब्यूटीफाई ईच अदर। हमने क्या, हमारे कपड़े हमको ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अच्छा मुझे एक याद आ गया, हाँ मैं अभी कहने वाली थी, हम कि हमको ब्यूटीफाई करते हैं लेकिन हम कपड़ों को ब्यूटीफाई नहीं करते हैं। लेकिन मुझे याद है एक हमारी अल्लाह बख्शे उनको मरहुमा, हमारे, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो कॉमन रूम में एंटर होते थे, तो वो एक अरबिक की टीचर थी, तो जैसे मैं एंटर होती थी तो मुझे जाके कहती थी, नसरीन ये कपड़े जो हैं ये आपके पहनने की वजह से सज गए हैं। मतलब वो सब लोग कहना कि ओ तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सामने नसरीन उल्टा बोलती थी, यार ये कपड़े आपके पहनने की वजह से सज गए हैं। तो मतलब ये एक इंसान कपड़ों की वजह से भी सज सकता है और कपड़े भी इंसान की वजह से सज सकते हैं। बाज कपड़े मुझे नहीं सूट करेंगे, आपको बहुत सूट करेंगे। तो ये होता है कि दे ब्यूटीफाई ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ दे ब्यूटीफाई ईच अदर एंड दे बिकम बेटर पीपल, ये आपके बेटर पर्सनैलिटीज। फिर हस्बैंड एंड वाइफ, जो मैंने आपको बताया ना, कपड़े हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड फितना। अंदर तो ठीक है आप रह रहे हैं, लेकिन ये कि बाहर के फितने कितने सारे हैं ना। अब एक हस्बैंड की, एक मर्द है, उसकी बीवी है ऑलरेडी, तो फिर उसको बाहर का फितना इतना टेम्प्ट नहीं करेगा जितना कि उसको घर में बीवी के मौजूद होने से इत्मीनान होगा। एक दूसरे के डिफेक्ट्स छुपाना, जैसे कपड़े हमारे डिफेक्ट्स छुपाते हैं, इसी तरह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के डिफेक्ट्स छुपाएंगे अगर वो ऐसा ट्रीट करें कि ये कपड़ा है और ये हम कपड़े, मतलब उसको बेजान ना समझें, लेकिन इस तरह से सोचें कि अगर मैं इनके डिफेक्ट्स छुपाऊंगी, ये मेरे डिफेक्ट्स छुपाएंगे, तो क्या होगा, बाहर के वालों को कम से कम वो डर्टी लिनन तो नहीं आप किसी को शो कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को जब प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी चीज यू रिप्रेजेंट ईच अदर। जब आप पब्लिक में जाते हैं तो बताओ ये फलां की बीवी है, फलां का शौहर है, यू रिप्रेजेंट ईच अदर। तो अगर आप एक बंदे की अच्छाई हो रही, दूसरे की भी अच्छाई होगी इंशाल्लाह ताला, उसके भी पब्लिक व्यूज जो हैं वो भी अच्छे होंगे। तीसरी, फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको कि आपके कपड़े आपको फिट होते हैं, वो आपके लिए बने हुए होते हैं। तो ये जो आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, ये भी एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं और एक दूसरे को फिट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं, ठीक है ना, जो हम कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी। फिर मैंने आपको बताया था कि कपड़ों को जिस तरह हम पाक साफ रखते हैं, प्योर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, इसी तरह हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को पाक साफ रखते हैं, एक दूसरे को क्लीन रखते हैं, गलत कामों में नहीं उलझते हैं। अगर हस्बैंड गलत कर रहा है तो बीवी समझाती है, बीवी गलत करी तो हस्बैंड समझाते हैं, ये एक रिश्ता है। और फिर क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कपड़े सबसे हमारे करीब तरीन है, इस तरह हमारे हस्बैंड से ज्यादा कोई हमारे करीब नहीं होता है। आप याद रखें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बत इन्हीं की होती है।
اور لاسٹ پوائنٹ تھا شاید ایک دوسرے کو پیس اور سیکیورٹی جو میں نے آپ کو بتایا تھا, امن اور یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں اور اعتماد. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل ہوتے ہیں, سیکیور ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا میرا ہسبینڈ ہے میرے ساتھ, تو وہ ہر چیز سے ایک دوسرے کو وہ پرابلم سے بچ کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو, جن کو بھی ہسبینڈس دیے ہیں, جن کو بھی وائفس دی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اپنے, یعنی آپ یہی سوچیں کہ اگر ہم جس طرح اپنے کپڑوں کو لو کرتے ہیں, اپنے کپڑوں کی کیئر کرتے ہیں, او یہ خراب نہیں ہو جائے, اس کو ڈرائر میں نہیں ڈالنا, اس کو واشر میں نہیں ڈالنا, یہ شرنک ہو جائے گا, ہم اسی طرح اگر اپنے ہسبینڈس کی کیئر کریں, ہمارے ہسبینڈس ہماری کیئر کریں, تو کیا ہوگا. ہم امیجن کریں کہ ہماری زندگی کتنی اچھی ہوگی. یہ سب تھیوری کی باتیں ہیں, میں بتا رہی ہوں, لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی ہم کریں تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. ایکچولی باتیں اس وقت تو تھیوری میں, لیکن ہم سب کریں, انکلوڈنگ مائی سیلف, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے آپ کی آپس کی ریلیشن شپ ہے, اس میں آپ لباس کی طرح ہیں, اور یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف جو کہ انٹیمیسی کی اور انسیپریبل ہے. یعنی جب آپ کے کپڑے, آپ کپڑے اتار کے تو بازار میں نہیں پھریں گے, کپڑے اتار کے کسی کے سامنے بھی نہیں جائیں گے, بچوں کے سامنے بھی نہیں جائیں گے, ماں باپ کے سامنے بھی نہیں جائیں گے, بھائی بہنوں کے سامنے بھی نہیں جائیں گے. تو یہ ایسی ریلیشن شپ ہے جو قربت کی بھی ہے, محبت کی بھی ہے, انٹیمیسی کی بھی ہے, اور انسیپریبل ہے. آپ اپنے کپڑوں سے جدا نہیں ہوں گے, کپڑے آپ سے جدا نہیں ہوں گے. اسی طرح شوہر اور آپ بھی, جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور آپ لوگوں کو اکٹھے رکھا ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر شوہر نہیں بھی ہے یا وائف نہیں بھی ہے تو کیا ہوگا آخرت میں, اگر دونوں نیک تھے تو آخرت میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ یاد رکھیں. اب پھر دوبارہ آتے ہیں ابھی اسی آیا نمبر 187 پہ, ہم ہن لباس لکم پہ چلے گئے تھے. اب انٹیمیٹ ریلیشنز ان رمضان. اب اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کیا بتا رہے ہیں, اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ فیکٹ ریویل کر رہے ہیں کہ کچھ مسلمان, کچھ صحابہ جو تھے, ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی تھی, ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نیچرل ڈیزائرز کو, سیکشول ڈیزائرز کو سپریس کریں, اور پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ انٹیمیٹ ریلیشنز کر لیتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. مردوں کو ضرورت تھی تو مرد کیا کرتے تھے, وہ انٹیمیٹ ریلیشنز اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے تھے ڈیورنگ دا نائٹس آف رمضان. وہ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو روکتے تھے. لیکن کچھ صحابہ, وہ جنرل تھا, ٹھیک ہے نا, کچھ صحابہ جو تھے, ہمیں نہیں پتا کیا نمبر تھا, 1 تھا, 2 تھا, 4 تھا, لیکن جن لوگوں نے یہ نہیں کنٹرول کر سکے, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہو گئے. تو یہ آیت آلسو یہ کنفرم کرتی, کچھ لوگوں نے خیانت کی, ٹھیک ہے نا, خیانت کی یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جانوں سے, یعنی ان کو پتا تھا کہ اپنی جانوں سے کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس خیانت کا نتیجہ کون بھگتے گا, اس کی سزا کس کو ہوگی. اگر وہ حرام ہوتا تو وہ حرام نہیں تھا الحمدللہ, لیکن کلیئر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ بھی کنفرم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ویکنسز کو پہچانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی, فتاب علیہم, ٹھیک ہے نا, ان کی توبہ قبول فرما لی, اینڈ ہی فارگیو دیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. آپ نے سب الفاظ ابھی پڑھے ہیں اس آیت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, ان کی توبہ قبول فرما لی, انہوں نے اپنی خیانت کو بھی ریکگنائز کیا, اور اللہ نے بھی ان کی خیانت کو معاف کر دیا. تو اس آیت کے تھرو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نیا رول ڈالا کہ آپ رات کو اپنی وائفز کے ساتھ آپ مباشرت کر سکتے ہیں. لیکن آگے کیا بولا کہ آپ اپنے ڈیزائرز پر, اور ساتھ لکھا ابتغوا, یعنی آپ ڈھونڈیں, آپ تلاش کریں. کس چیز کو تلاش کریں؟ بلیسنگز. کون سے بلیسنگز؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بچے دینے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی ڈیزائرز بھی پوری ہو جائیں گی, سیکشول ڈیزائر بھی, اور آپ کے جو بچوں کی خواہش ہے اور بچوں کا جو ہونا چاہیے, اسلام میں مسلمانوں کو گرو کرنا ہے, تو یہ دونوں خواہشات دونوں لیجٹمیٹ ہیں, دونوں یہ آپ کی اس ریلیشن شپ سے جو بھی چیز آئے گی وہ دونوں صحیح ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, پہلے بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن جسٹ فار دا سیک آف دس آیت, کہ میرج, ایک شادی جو ہے, ایک اسلام میں جو ہے, اس کا صرف یہ نہیں کہ سیکشول ڈیزائر پورے کرو, میئر سیٹسفائی اور سیکشول ڈیزائر. اس کا مطلب یہ کہ اس کی بہت وائڈر ڈائمینشن ہے, اس کی آبجیکٹیوز, اس کے مقاصد جو ہیں شادی کے, وہ بہت ہائی ہیں. دس از ون آف دی آبجیکٹیوز. لیکن اصل مقصد جو جب شادی کے ٹاپک پہ آئیں گے انشاءاللہ تو یہ کریں گے. تو یہ بھی ہے کہ شادی جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی آنریبل چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے, ایک سٹیٹس ہے جب شادی کر لیتے ہیں کہ اس کو چیریش کرنا چاہیے, اس کو ٹریجر کرنا چاہیے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنی شادی کو. تو اسلام کا ایم کیا ہے؟ اسلام کا ایم یہ ہے کہ ہماری مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈز کو, ہمارے اس کو اونچا کرے.
اللہ ताला हमको ये कहता है कि हम जानवरों की तरह नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसानी फितरत डिफरेंट चीज़ है। इंसानी फितरत को अपनी ख्वाहिशात जो पूरी करने का हुक्म है कि आप कर लें, आपको इजाज़त है, लेकिन जानवरों की तरह नहीं, आपने इंसानों की तरह करना है। जानवर आपको पता है जहां भी होते हैं, सड़क पे होते हैं, वो अपनी इंसानी फितरत पूरी, अपनी जानवरों की फितरत पूरी कर लेते हैं, ठीक है अपनी। लेकिन अच्छा, तो ये तो बात खत्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी आयत में है कि कुछ कंफ्यूजन थी कुछ सहाबा के दरमियान कि एक्चुअल टाइम जो है रोजा स्टार्ट होने का क्या है। वो थोड़े परेशान थे कि इसमें लिखा है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तो बताया है कि रोजा, लेकिन अभी तक कुरान में ये क्लियर अल्फाज नहीं आए थे कि किस वक्त स्टार्ट होता है और किस वक्त खत्म होता है। तो कोई लोग जिस तरह उन्होंने मुबाशरत का सोचा था, इन्होंने अज्यूम किया। कोई लोग ये सोचते थे, कुछ सहाबा थे, तो वो ये सोचते थे कि आपने इशा की नमाज पढ़ ली, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है, आपने रोजा खोल लिया, आपने खाना खा लिया, आपने इशा की नमाज पढ़ ली, उसके बाद जो है प्रोहिबिटेड है कुछ भी खाना पीना। कुछ लोग ये सोचते थे कि आप उस वक्त तक खा पी सकते हैं जब तक कि आप सो ना जाएं। अगर आप सो गए तो फिर आप नहीं, अगर आप उठे चाहे सहरी का टाइम, वो जैसे मुबाशरत का उन्होंने अज्यूम किया था, इसी तरह इसका भी अज्यूम किया कि अगर आप सो गए उसके बाद आप उठ भी गए, लेकिन अभी सहरी का टाइम उनको पता नहीं था क्या है, तो वो कहते थे फिर अगर आप उठे तो आपको खाने की इजाजत नहीं। इशा के बाद कुछ लोगों ने कुछ ने कहा कि सो के उठ के नहीं। ये सब अपने गेसेस थे और जिसकी वजह से काफी इनकन्वीनियंस हो रही थी। अल्लाह ताला ने इस आयत से वो तमाम मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर दिया। अल्लाह कहते हैं ना युबय्यिनु, कि अल्लाह ताला बयान करते, खोल खोल कर बयान करते हैं कि एग्जैक्टली बता दिया कि कब से लेके कब तक आपने फास्ट करना है। रोजा, आपके रोजे का टाइम सहरी का टाइम क्या और इफ्तारी का टाइम क्या है, मतलब समझ लें कि कौन से पार्ट्स ऑफ द नाइट और कौन से पार्ट्स ऑफ द डे में क्या करना है। तो अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया कि क्या है, जब सफेद धारी, सफेद धागा अपीयर हो जाए होराइजन पे, दैट इज द टाइम ऑफ टू एंड योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड इंटरकोर्स, सब कुछ। और क्या सफेद धारी, सफेद धागा, आपको पता है सहाबा को जब ये पता चला कि सफेद धारी सफेद धागा से काले धागे से डिस्टिंग्विश होना, अपने तकिए के नीचे वो धागा रख के सोते थे और सफेद और काला और के देखते थे, कहते थे हमें सफेद काला ये तो समझ नहीं आ रही क्या करना है। फिर ये सहाबी जो जरा दूर होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये होराइजन पे, जब आसमान पे आपको मशरिक की तरफ, जब आपको नज, क्योंकि मशरिक से ईस्ट से सूरज निकलता है, जब सूरज निकलने वाला होता है तो निकलने से पहले, सूरज निकलना, सनराइज तो बहुत देर से होता है, जब फजर का टाइम स्टार्ट होता है, आपको पता है सूरज निकलने से काफी देर पहले होता है, 1 घंटे, सवा घंटे, कहीं 1.5 घंटे उससे पहले होता है। तो जब वो हल्की सी एक सफेदी सी आ जाए आसमान पे, पहला धागा समझे, पहली धारी आ जाए नेचुरल लाइट की, और वो फिर आस्ते आस्ते बढ़ना, जब वो आपको सफेद धारी नजर आ जाए, उसका मतलब अब आपने खाना पीना इंटरकोर्स बंद कर देना है। देन और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया, और कब तक करना है, अंटिल नाइट, यानी वो नाइट क्या है, आपने उस वक्त इफ्तार करनी, उस वक्त रोजा खुलना है जब सन सेट हो जाए। और ये किसने हमको सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, पूरी तरह गुरूब हो जाए, ये नहीं कि अभी सिर्फ जरा सा गुरूब, अभी थोड़ा सा नीचे से गुरूब हुआ और अभी ऊपर का इतना बाकी, जब पूरी तरह गुरूब हो जाए, जब डार्कनेस आ जाए, डार्कनेस तो नहीं होती इतनी, लेकिन हल्की सी डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है, जबकि ईस्टर्न होराइजन पे हल्की हल्की डार्कनेस, वेस्ट पे तो सूरज गुरूब हो रहा है, ईस्ट साइड पे आपको फिर डार्कनेस नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये आपका रोजे का सहरी करने का, खत्म करने का टाइम है और इफ्तार का टाइम है, ठीक है ना। और बिटवीन सनसेट एंड डॉन, यानी रात को आपने, सनसेट हो गया, रोजा आपने खोल लिया, एक दफा खोल लिया आपने रोजा, मगरिब हो गई, उसके बाद आपने खोल लिया, उसके बाद सुबह जब तक आपकी वो डॉन, सफेद धारी ना निकले, उस वक्त तक आपको इजाजत है कि आप खाएं पिएं और अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरे करें अपनी बीवियों के साथ। लेकिन ये नहीं है कि हुक्म है कि आप बस सब खाते पीते रहें, अब आप सारा वक्त ये करते रहें, नहीं, ये नहीं है, ये सिर्फ आपको इजाजत है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि जो एक यानी सुहूर के मुतालिक, सहरी जिसको हम कहते हैं, उसके मुतालिक बताया कि एक अच्छी सहरी रेकमेंड की उन्होंने। जाहिर है कि फर्ज तो नहीं वो कर सकते कि आप इस टाइम पे खाएं, टाइम तो पता है, लेकिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेकमेंड जरूर किया। इट्स अ वेरी रेकमेंडेड सुन्ना, हाईली रेकमेंडेड सुन्ना, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप खाएं पिएं उस वक्त तक, जब तक कि, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप उस वक्त तक खाएं पिएं जब तक कि आप अगर आप बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डॉन का जो प्रेयर है उसको
वो टाइम आपका मतलब अब होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन होने वाला है क्योंकि बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा जल्दी अजान देते थे, लेकिन वो कहते हैं जब आप वो प्रिपेयर कर रहे होते, समझ लें तो, लेकिन जब आप फास्टिंग शुरू करेंगे वो उस वक्त शुरू करेंगे जबकि मैं आपको उम मक्तूम जो थे, जो कि नाबीना थे, मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो अजान देंगे, वो थोड़ी देर से अजान देते थे, उससे पता चल जाता है कि अब नमाज का फजर का टाइम स्टार्ट हो रहा है, अब आप अपना रोजा, यानी बहुत अंधेरे में आपको रोकने की जरूरत नहीं है। बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब देखिए उन्होंने वक्त तो नहीं बताया घड़ी में, क्योंकि रोज चेंज होता है, घड़ी का अगर बता देते तो हम कैसे अप्लाई करते, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 5 बजे, अब तो आज चेंज होता जा रहा है, अब हम क्या करें। उन्होंने ये बताया अपने लोगों को, सबको पता था वहां पर मदीने में कि ये बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले लोगों को उठाने के लिए अजान देते हैं, फजर के उठाने के लिए अजान देते हैं, सहरी के लिए अजान देते हैं, जो भी, लेकिन मक्तूम जो है वो बाद में देते हैं जबकि एक्चुअल फजर का टाइम स्टार्ट हो रहा था, उस वक्त वो कहते हैं स्टार्ट कर लें। तो अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों फिक्स किया, इतना सिंपल, इतना क्लियर, कि हमें ये नहीं बताया, क्लॉक से नहीं बताया, हमें इस तरह से बताया प्रैक्टिकली, ताकि हमें पता है कि इस्लाम जो यूनिवर्सल है, ठीक है ना, तो जब यूनिवर्सल है और एंड ऑफ टाइम तक है और पूरी दुनिया में लोग हैं, तो हर एक के लिए अगर टाइम फिक्स करने जाएंगे तो वो तो पूरा पूरा कुरान ही टाइम से भर जाएगा या पूरी हदीसें ही टाइम से भर जाएंगी। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको हमें बहुत सिंपली समझाया, अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत सिंपली समझा दिया। तो हमें ये करना है कि इन लिमिट्स को अपनी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी इसको फॉलो करना है और हमें अल्लाह से तकवा रखते हुए हमें ये चीजें फॉलो करनी है। तो ये एक और इसमें रह गया ना, एक और इसमें इस आयत का एक और हिस्सा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब आप मसाजिद में जब आप एतकाफ में हैं तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में, अब आप कहेंगे मस्जिद में कैसे करेंगे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स, आई मीन सवाल नॉर्मल पैदा होता है। तो ड्यूरिंग एतकाफ ये नहीं कि आप मस्जिद से बिल्कुल निकल ही नहीं सकते, मस्जिद में रहना है, रात दिन रहना है, 10 दिनों तक 10 रातों तक आपने रहना है, या 9 जितने भी हैं, ईद का चांद नजर आएगा तो एतकाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन मस्जिद से निकलने के लिए अगर जरूरियात जिंदगी हैं जिनके बगैर आप मस्जिद में आप पूरी नहीं कर सकते, सपोज आपके पास खाना ही नहीं है, कोई खाना लाने वाला नहीं है, तो आप जाएंगे खाना लेने के लिए, कभी आप बाजार से लेंगे, कभी आप घर से जाके लेंगे, हर बंदा रोज बाजार का तो नहीं अफोर्ड कर सकेगा। तो जब आप घर जाते हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं, मस्जिद में नहाने की जगह नहीं है, तो इन चीजों के लिए जब आप घर जाते हैं, कपड़े बदलने जा रहे हैं, कपड़े तो नॉर्मली रख भी सकते हैं लेकिन नहा के कपड़े बदलना है, तो जब कोई नेसेसिटी हो तो आप घर जाएं। तो घर में भी जब आप जाएं तो उसमें एतकाफ के दौरान वो 10 डेज आप एतकाफ में हैं, तो उस वक्त आप अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करें, चाहे वो रात का टाइम हो चाहे जो भी हो, ठीक है ना, आपका रोजा नहीं होगा उस वक्त, रात का टाइम होगा, लेकिन ना करें वाइल यू आर इन अ स्टेट ऑफ एतकाफ। अब आप घर भी जा रहे हैं लेकिन आपका एतकाफ कंटिन्यू है, टूटेगा नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला बता रहे हैं, आगे क्या बताएं, दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है और अल्लाह ताला कहते हैं इसके करीब भी ना जाए, इसके करीब भी ना जाए। तो हम क्या लेसन सीखते हैं कि अगर हम अल्लाह की बाउंड्रीज के करीब जाएंगे तो वो भी बहुत डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि जब किसी चीज के करीब जाएंगे टेम्पटेशंस है, टेम्पटेशंस होती है, और अल्लाह ताला हमको बता रहे करीब नहीं जाओ, उसका मतलब है कि अल्लाह ताला को हमारी फितरत मालूम है। एक चीज देख रहे हैं हम कहते हैं चलो थोड़ा सा लेने में क्या हर्ज है, मसलन एक छोटी सी चीज है, यहाँ पर छोटी सी चीज नहीं है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप जा रहे हैं वेगस जा रहे हैं और वेगस जाके आप देख रहे हैं कि सब लोग वहां पर जुआ खेल रहे हैं, लोगों के पैसे गिर रहे हैं, टक 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 आवाजें आ रही है, कोई क्या हो रहा है। अब आप सिर्फ घूमने के लिए गए, शोज देखने गए, बाहर गए, तो बाज लोग तो कहते हैं जाओ ही मत, लेकिन हमारे कोई मेहमान आते हैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं प्लीज हमें दिखाओ क्या है वो, क्या दुनिया है, हम भी देखें। तो जाहिर है हम उनको पहले से कह देते हैं अगर आप अंदर घुसेंगे, अगर आप कसीनों में खेलेंगे तो हम आपको नहीं लेकर जाते हैं, फिर वो हमसे प्रॉमिस करते हैं, फिर हम ले जाते हैं। अब वहां जब वो देखते हैं इतने पैसे गिर रहे हैं तो फिर उनका दिल चाहता है ना, तो वो बाउंड्री के इतने करीब आ जाते हैं, उस बाउंड्री पे डिसओबे करने में क्या हर्ज है, $5 का खेल लेते हैं, $10 का खेल लेते हैं, नहीं। इसी तरह हर चीज के लिए अल्लाह ताला ने लिमिट्स बनाई। इवन जब आप घर जाएंगे, बीवी के पास जाएंगे, आप नहाने जाएंगे, आपकी डिजायर्स होंगी तो आप एतकाफ में होंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उससे दूर रहो, अपने इस टेम्पटेशन में ना जाओ कि अपने डिजायर्स को ना कंट्रोल कर सको, और आप इसका नतीजा ये होगा कि आप लिमिट्स क्रॉस कर लेंगे। जब आप लिमिट्स क्रॉस कर लेंगे आपसे गुनाह सरजद हो जाएगा। अच्छा इतनी देर हो गई है, एक और आयत कर लें, क्या करें, 11:26 है ना, एक आयत कर लें और चलिए एक और आयत करते हैं, आयत नंबर 188।
and ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے. دیکھا قرآن کی ہر آیت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن بعض ایسے احکامات ہیں جب ہم سٹوریز سن رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں, ولا تأکلوا, اور آپ نہیں کھائیں, آپ مت کھائیے, اینڈ ڈو ناٹ ایٹ, ڈو ناٹ کنزیوم, کیا چیز, اموالکم, آپ کے مالوں کو, اپنے مالوں کو, بینکم, آپس میں, ایک دوسرے سے اپنے مال مت کھائیں, یعنی میں کسی کا مال کھا رہی ہوں, کوئی میرا مال کھا رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے بینکم, اپنے درمیان ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. کس طرح سے, بالباطل, ویسے بھی نہیں کھاؤ لیکن بالباطل یعنی رانگ فلی, باطل باطلام یعنی ہمیں پتہ ہے باطل کس کو کہتے ہیں, یعنی ناجائز طریقے سے, رانگ فلی, سن فلی, ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا یعنی لا ادھر بھی آ رہا ہے, وہ لا جو تھا لا تاکل ادھر بھی آ رہا ہے, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اب اس کا بتاتی ہوں. تدلو آپ یہ پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ جب ہم سورہ یوسف کا وہ پڑھ رہے تھے قصص میں, اس میں دال لام واو, یاد ہے یوسف علیہ السلام کو کہ یہ بالٹی ڈالو, تو جب کوئی بالٹی ڈالتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں, تو ادلا یدلی ادلا ان, فارم 4 ہے, ادلا یدلی ادلا ان, فارم 4 ہے. اس کا مطلب یہ ٹو پل, اب ٹو پل یعنی آپ نے بالٹی ڈالی, نیچے لٹکائی اور آپ اس کو اب کھینچ رہے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں یہاں, پل سٹرنگز آپ کہہ لیں. مجھے نہیں پتا اس کو انگلش میں اب آپ کیا کہیں گی, آپ یہ کہیں گے ڈو ناٹ پریزنٹ, میں آپ کو مطلب سمجھا دیتی ہوں, اور آپ مت کھینچیں, آپ مت پہنچائیے, کیا چیز, ڈو ناٹ پریزنٹ, ڈو ناٹ آفر, ڈو ناٹ پل اسٹرنگس, کس کے ساتھ, مت, مطلب مت آفر کرو, مت کھینچو, مت پہنچاؤ, بہا یعنی اس کو, الی الحکام, ٹو دا اتھارٹیز, اس کو حکام تک نہ پہنچاؤ. کس چیز کو, پیسوں کو, ان پیسوں کو آپس میں آپ ایک دوسرے کا جو کھا رہے ہیں آپ حکام کو دے رہے ہیں. لِتَأْكُلُوا, لی کا مطلب ہے سو دیٹ, یعنی تاکہ, تأکلوا کہ آپ کھائیں, تاکہ آپ کھا سکیں, آپ کھا لیں, فریقاً, فریق مطلب آپ کو پتہ ہے کوئی حصہ, ایک پورشن یا ایک پارٹ, من اموال الناس, فرام دا ویلتھ آف دا پیپل, من اموال الناس, فرام دا ویلتھ آف دا پیپل, لوگوں کے مال میں سے آپ اس میں سے کھا لیں, اس کے لیے حکام کو پیسے مت دیں, بالاسم یعنی سنفلی, اسم کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جبکہ آپ جانتے ہیں, جان بوجھ کے کریں, while you know, while, وا کا مطلب ہے while. تو اس کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ کے لیے بھی ہے, آخرت کے لیے, آخر کے لیے بھی ہے, شروع سے بھی ہے, پاسٹ ٹینس سے بھی ہے. اللہ کس چیز کی بات کریں, بزنس پریکٹسز اور ڈیلنگز کے لیے بھی, اور پرسنل ڈیلنگز اور پرسنل پریکٹسز کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ایک وارننگ دے رہے ہیں, لا تاکلوا, کہ آپ مت کھائیں. کیا کرنا نہ کرنا, کسی کا مال کھانا, کسی کا مال غصب کرنا, کسی کے possessions کو usurp کرنا. So Allah gives a grave warning against usurping people's possessions, کسی کے مال کو غصب کرنا, کسی کے مال کو wrongfully کھا لینا. اور اللہ تعالیٰ کس کے بعد یہ شروع کریں, اس سے پہلی آیت کس پہ ختم ہوئی تھی, تتقون پہ یا تقون پہ ختم ہوئی تھی. تقوی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کہ آپ کسی کا مال رانگ فلی غصب نہ کریں. غصب کرنا رانگ فلی ہوتا ہے, ظاہر ہے زبردستی لے لینا کسی کا, کسی کے مال کو رانگ فلی حاصل کر لینا سمجھ لے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہمیں ایک لٹمس ٹیسٹ سے گزار رہے ہیں, یعنی تقوی کا ٹیسٹ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا ایک میننگ یہ ہو سکتا ہے, اس کا دو میننگ ہے اس میں. ایک میننگ یہ ہے کہ ہم کسی سے illegitimate benefits نہ لیں. دیکھیں میری اپنی بینیفٹ ہے, میں اس کے لیے ٹرائی کر رہی ہوں, میں کورٹ میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اس کی حقدار نہیں ہوں, یہ کسی اور کا حق ہے, میں illegitimately میں برائب کر رہی ہوں, میں رشوت دے رہی ہوں حکام کو, کس چیز کے لیے, تاکہ وہ جو اس کا مال ہے وہ میرے لیے آ جائے, وہ مجھے مل جائے. یعنی میں اس کے لیے انجسٹس کر رہی ہوں, اس کے ساتھ میں ناانصافی کر رہی ہوں, اس کے ساتھ میں ظلم کر رہی ہوں, اس کے رائٹ کو, اس کے حق کو میں مار رہی ہوں, میں غصب کر رہی ہوں اس کے مال کو. کس لیے, تاکہ حکام میرے فیور میں بیان دے دیں, حکام میرے فیور میں فیصلہ کر دیں. دوسری میننگ یہ ہے کہ ابھی جب یہ تو میں نے پیسے دیے, ٹھیک ہے نا, اللہ نہ کرے رشوت دیا کسی کو, کہ بھئی یہ آج کل بہت کامن ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے رشوت دیا, بھئی میرا یہ کام کر دو, میرا حق نہیں بنتا ہے لیکن میرا کام کر دو, وہ پیسے لے گا اور وہ آپ کے لیے کر دے گا جو مرضی.
करना है वो आपको करा देगा, हर किस्म की सर्टिफिकेट, हर किस्म का हर कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी मीनिंग ये है कि जब, खासकर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, और दूसरी मीनिंग ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है उसमें आपका हिस्सा नहीं, इट डजंट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, येट मैं क्या करूं कि मैं जुडिशियल पिटिशन करूं, कोर्ट में ले जाऊं उसको। एक तो आपने पैसे दे दिए हुकाम को, दूसरा आप ये कर रहे हैं कि आप, ये सेकंड एग्जांपल है कि आप कोर्ट में चले जाएं, एक पिटिशन करें उसके माल को अपना माल बनाने के लिए। और आप क्यों ये कर सकते हैं? आप इसलिए कर सकते हैं कि उस बंदे के पास पूरी एविडेंस नहीं है, जब वो अपने केस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई ना, और आपके पास अच्छे से अच्छा लॉयर है, आपके पास पैसे हैं, आप उसको फॉल्स एविडेंस देके, फ्रॉडुलेंट एविडेंस देके आप अपने फेवर में जजमेंट दिलवा लें। हमारी जुडिशियल, अच्छा इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जरूरी है कि जज आपके साथ मिला हुआ हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जज जो है वो डिसाइड करे, मतलब वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो वो डिसाइड कर ले आपकी फेवर में, जबकि आपने क्लेम किया है फॉल्स एविडेंस के साथ, या आपने उसको ब्राइब दिया हो या किसी और को ब्राइब दिया हो, तो वो आपके फेवर में कर ले। हमें ये समझना बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर हमने ऐसा कर लिया, किसी ने भी, अल्लाह ना करे कि मैं और आप हो, लेकिन किसी ने भी कर लिया अनलॉफुल मीन से, हराम मीन से, अगर हमने उस माल पे, उस जमीन पे, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर लिया, तो भी हमारे लिए अल्लाह की नजर में वो हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप जजमेंट के लिए मेरे पास आते हैं तो किसी की एविडेंस बहुत क्लियर होती है और किसी की एविडेंस इतनी क्लियर नहीं होती है। मैं तो एविडेंस देख के मैं फैसला कर देता हूं। अगर मैंने किसी को गलत फैसला कर दिया जो कि राइटली उसका नहीं था और उसको मैंने कोई चीज दे दी, तो आप ये समझ लें कि मैंने आपको आग का एक टुकड़ा दिया है। आई हैव गिवन हिम अ ब्रांड ऑफ फायर, और ये उसके ऊपर है कि वो इस आग को कंज्यूम करे या उस आग को छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो नहीं मालूम था ना। तो इससे हम क्लियरली, हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहले अल्लाह ताला ने किस चीज की बात की, किसास की बात की, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं तकवा। फिर अल्लाह ताला ने रोजों की बात की, तकवा। फिर अल्लाह ताला ने अभी किसी के माल को गसब करना, इसमें भी तकवा। हर मैटर जो है वो तकवा से रिलेटेड है। हमें माइंडफुल होना चाहिए, वॉचफुल होना चाहिए। और ये रूलिंग्स जो है हमें बताती हैं कि इस्लाम का जो एक वे ऑफ लाइफ है, इस्लाम के जो अहकामात है, किस तरह एक दूसरे से हार्मोनियस है, हम आहंगी से बने हुए हैं, और कैसे डिवाइनली अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह को इंसानी फितरत का मालूम है और किस वक्त क्या कुरान में आ रहा है। सुभान अल्लाह, जितना पढ़ेंगे एवरी डे, आप जब कुरान रीड करते हैं एवरी डे ऐसे कुछ चीजें आती हैं कि इंसान हक्का बक्का रह जाता है। बस अल्लाह ताला ने इसको ऐसा हमारे लिए बनाया कि हमें हर हर कदम पे, हर हर लम्हे तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, एंड दैट इज द मेन थिंग। तो इनको अगर हम कुछ रूलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ रूलिंग्स को अगर हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो समझ लें कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि भाई ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला एंड में कहते हैं कि आपने जब किसी को धोखा दिया, आपने ये हुकाम को ब्राइब किया या आपने फॉल्स टेस्टिमनीज दी, फॉल्स एविडेंस दी, तो एक्चुअली अल्लाह ताला कहते हैं आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, व्हाइल यू नो बट यू प्रिटेंड नॉट टू नो। इससे क्या पता चलता है कि उनको दुनिया में सब कुछ करने के लिए इजाजत दी गई है कि आप कर लो, इजाजत नहीं है, मतलब अलाउ किया हुआ है कि अभी तुम गलत काम करोगे तुम्हारे लिए दोज़ख पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अल्लाह ने बताया हुआ है। दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ अल्लाह, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि अल्लाह उनको देख रहा है। व्हाट इज दिस? क्लियरली लैक ऑफ तकवा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको इस पे चलाए कि हम, हमारी तकवा जो है अल्लाह ताला हमें इंक्रीज करने की तौफीक दे। हमें ये समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला हर वक्त देख रहा है, हर वक्त सब कुछ सुन रहा है, उसको अंदर का हाल भी मालूम। अल्लाह ताला हमको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे और उनकी तरह बनाए जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी थे, खुलफाए राशिदीन थे, उन सब की तरह बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल था क्लास शुरू होने से पहले, आपसे सवाल पूछना था लेकिन मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले जब हम क्लासरूम में थे तो एक टॉपिक निकला था कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, काफी लोगों ने कहा है कि हम रमजान में कंटिन्यू करें क्लास, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि रमजान के लास्ट 10 डेज में तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, कितने लोग आप रात भर जागेंगे तो दिन को कैसे क्लास अटेंड करेंगे, मेरे लिए भी प्रिपेयर करना भी मुश्किल होगा। तो अब ये सवाल है कि आप लोग रमजान में क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं कि नहीं अटेंड करना चाह रहे हैं। मैं तो तैयारी कर रही हूँ और जाहिर है टाइम तो मेरा ही ज्यादा लगेगा। अगर आप
चाहें, लेकिन 2 वीक्स की बात है सिर्फ, कि अगर 2 वीक्स हम अगर रमज़ान में इन क्लासेस को कंटिन्यू करें, प्लीज़ मुझे यस या नो में आप जवाब दे दें। मैं देखूंगी कितने लोग क्या कह रहे हैं। आई डोंट वांट कि जो लोग रेगुलरली अटेंड करते हैं वो तकलीफ में आ जाए और ना अटेंड कर सकें। बहुत सारे लोग दौरा कुरान अटेंड कर रहे होते हैं, बहुत लोगों के अपने हलक़ात होते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि वेदर यू वुड शुड आई हैव द क्लासेस इन रमज़ान और नॉट। ठीक है ना, मुझे जरूर आप मुझे उसी पे ग्रुप पे ही डाल दें, अलग से मत डालें, ताकि मुझे मैं काउंट कर सकूं कितने लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, और बाकी कोई सवाल अब आप बताइए, अभी हम 4 मिनट और सवाल ले सकते हैं। आप लोगों ने वो जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने आपका रमजान का जो आपने डाला था वो सुना, बहुत अच्छा आपने बताया, सारी चीजें बहुत अच्छी तरह क्लियर मुझे सब समझ में आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका बहुत अजर दे। एक चीज में उसके अंदर सब कुछ क्लियर तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाहिए थी कि क्या टूथपेस्ट नहीं बिल्कुल करना चाहिए, टूथपेस्ट नहीं मैंने ये लगाना नहीं चाहिए? कहा, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, मैंने इसको आपको मैं बताया, हाँ मैंने ये बताया कि टूथपेस्ट अलाउड है इन द सेंस कि आप टूथपेस्ट अगर यूज कर रही हैं तो आप देखें, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं खुद अवॉइड करती हूँ सहरी के बाद टूथपेस्ट करने का। मतलब आपने खाना सहरी कर ली बिफोर द टाइम स्टार्ट्स रोजे का, मैं पहले टूथपेस्ट करके ब्रश करके फिर मैं पानी पीती हूँ, तब मुझे लगता है कि अब मेरा मुंह साफ हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप दिन को टूथब्रश करना चाहती हैं, आप खाली ब्रश से भी कर सकती हैं, मिसवाक से भी कर सकती हैं। अगर आपको टूथपेस्ट बहुत जरूरी लगता है तो आप करें, लेकिन इस तरह करें कि केयरफुल रहें। हमेशा चांस होता है कि टूथपेस्ट क्या पता हलक में चला जाए, तो जी बिल्कुल हराम सही नहीं है, मना नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। जज़ाकल्लाह खैर। भैया जी अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम जी आरफा। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने अभी बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरे का लिबास है, हमें एक दूसरे से जाहिर है कोई बात छुपाती नहीं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि बाज बच्चियां किसी कम हैसियत घराने से शादी होकर बड़े घर में जाती हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है, तो क्या वो उस पॉकेट मनी से अपने माँ बाप को कुछ दे सकती हैं? वो खयानत कहलाएगी या मतलब बगैर शौहर को बताए? अगर शोहर ने उसको पॉकेट मनी दी और इसलिए दी कि तुम्हारा जहां मर्जी खर्च करना है करो, जी जहां मर्जी करना है करो, यू कैन गो, यू कैन थ्रो इट, यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ईट, यू कैन गो टू योर फैमिली, तो ठीक है, क्लैरिफाई कर लें कि भाई मैं इसमें से देना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करूंगी, मैं ये करूंगी। लेकिन अगर शोहर इसलिए दे रहा है कि इसे आप घर का खर्च चलाएं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर वो गलत होगा, लेकिन अगर उसके अपने इस्तेमाल के लिए दे रहा है तो वो कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, तब ठीक है ना भाई, आपने अपनी मर्जी है, जिस पे मर्जी खर्च करें। आपकी जी फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपके वालिदैन ही है ना। जी जी बिल्कुल। और दूसरा मेरा एक सवाल ये था कि मेरे साथ ये है कि मेरी शुगर एकदम से कभी हाई और ज्यादा हो जाती है, तो अभी पिछले जुम्मे को भी मैं सुन्नतें पढ़ी फजर की और उसके बाद मुझे होश नहीं, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। तो क्या मैं ऐसी हालत में रोजा, मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद ना रख पाऊं मैं, तो क्या मैं फिदिया दे सकती हूँ या मुझे कज़ा करनी होगी बाद में? आप ऐसा करें आरफा, आप जो आपके जो डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर से बात करें जो कि मुत्तकी डॉक्टर, तकवा का तो पता नहीं चलता है, लेकिन मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, उससे पूछें कि मेरी ये हालत है। तो जी अगर वो कहते हैं कि आपकी ये जो शुगर की मेडिसिन है आप सहरी में ले लें, आप रात को ले लें, इवन आप अगर इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन का टीका भी आप लगा सकती हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। तो इसलिए अगर आप वो सब करना चाहें, आप पूछ लें। अगर वो आपको कहते नहीं आपके लिए खतरा है, तो फिर आप ना रखें। यू कांट पुट योर सेल्फ इन हार्डशिप। उसमें यह है कि आप, अगर आपको पता है या आप एक रोजा रख के देखें नहीं चला, तो नेक्स्ट डे बेहोश होकर गिरना तो बहुत ही मुश्किल काम है जी ना। हाँ, ये अभी लास्ट वीक हुआ है, फ्राइडे को, बल्कि मेरे साथ मैंने सुन्नतें पढ़ी फिर मुझे नहीं पता चला, तो आप वो मेरे डॉक्टर बेटे ने से, कहा हाँ। नहीं नहीं आप मेरा डॉक्टर, अप्रैल 7 को अपॉइंटमेंट है, अब उस वक्त तक तो शायद मैं थोड़ा बहुत रोजा रखने की कोशिश कर लूंगी। नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करें, आप डॉक्टर से पहले अच्छा पूछ लें। और फिर अच्छा। ये है कि आप थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे आपने उस दिन बेहोश हो गई तो क्या होगा। जी नहीं, जी आप पहले से पूछ लें, अभी से पूछ के रखें डॉक्टर से। और अगर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ना रख सकें, तो कोई जी। बात नहीं, अल्लाह ताला आप पे हार्डशिप नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसको इंशाल्लाह ताला मेकअप भी आप शायद नहीं कर पाएंगे, नहीं कर क्योंकि पाती हूँ मैं जी। हो सकता है विंटर्स में कर पाए, हो सकता है कि आप दिसंबर में, तो दिसंबर में ट्राई कर लें, दिसंबर जनवरी में अगर कर सकें तो। और नहीं कर सकते तो आप फिदिया तो अभी से दे ही दें, क्योंकि आप नहीं नहीं बीमार दे में आ दूँ, हाँ बस ये सवाल था मेरा कि फिदिया दे दूँ मैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर नसीम। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सवालात फिर नेक्स्ट वीक पे रख लेते हैं। जी इंशाल्लाह, देर हो गई, हाँ सॉरी। ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. وإياكم وإياكم.